Welcome to the last lecture of the chapter Cash Flow Statement. Lecture number 16, Comprehensive Questions. Question number 23. Prepare a cash flow statement from the following balance sheet. First we have a share capital, financing activities, reserves and surplus. Number 1. We have general reserve, operating activities, appropriation, surplus, operating activities, trade payables, operating activities, fixed assets में we have plant, investing activities, inventories, trade receivables, operating activities, cash and cash equivalents, none. And old machinery having books value this was sold for this. एक पुरानी मशीन जिसकी वैल्यू 42,000 है उसे 56,000 में बेचा गया. Depreciation provided on machinery during the year is 28,000. Let's start with the machinery account. Question number 23. Machinery being asset, debit balance, to balance brought down. यहाँ पे मैं प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा मान रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान दें बैलेंस शीट के अंदर प्लांट है और एडजस्टमेंट में मशीनरी है, तो आई एम कंसिडरिंग प्लांट एंड मशीनरी वन एंड द सेम थिंग. द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट इज 280 and the closing balance of plant is 392. And old machinery having book value 42 was sold for 56 by bank, sale 56 to P&L, profit 42,000 की चीज 56,000 में बेची तो प्रॉफिट हुआ 14,000 का. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरीज 28,000 बाय डेप्रिसिएशन. कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी पे? 28,000. देयर इज नो accumulated depreciation account. The balancing figure of this account is purchases 3,92,000 plus 28,000 plus 56,000 is 4,76,000. And here is to cash or bank purchases. Balancing figure 4,76,000 minus 14 minus 280, 182. 1,82,000. So 2,80,000 plus 14,000 plus 1,82,000 is 476. और कोई अकाउंट तो बनना नहीं है. That's it. काफी छोटा क्वेश्चन लग रहा है ये. सरप्लस ऑफ द ईयर आफ्टर टैक्स. सरप्लस फॉर द ईयर 180 से 3 लाख, 180 से 3 लाख हमने कितना कमाया? 1,20,000 प्लस डिविडेंड नहीं है, टैक्स नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हाउ मच वी हैव ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिस ईयर? पहले था 2,000 फिर है 8,000. 2,000 से 8,000 तो हमने 6,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है. So net answer is 1,26,000. That is surplus before tax. Make the format cash flow statement. As per accounting standard 3 revised. Particulars, details, amount.
amount in rupees. A, cash flow from operating activities, surplus या profits before tax 1,26,000 plus non-cash and non-operating expenses. In non-cash and non-operating expenses, we do have interest on debentures, no. Amortization, no. Loss on sale, no. We just had depreciation. Depreciation on plant and machinery 28,000 minus non-cash and non-operating activities, non-cash and non-operating incomes. We don't have 126 plus 28, 154. Operating profit before working capital changes 1,54,000. No, we do have profit. I skipped that. Profit on sale of machinery. That will be deducted. Then we'll get the answer. Loss नहीं है, profit तो है. Minus profit on sale of machinery or plant 14,000. So 126 plus 28 minus 14, 1,40,000. This is operating profit before working capital changes. Now we'll adjust current assets and current liabilities. Starting with current asset, inventories कम हो रही हैं plus decrease in inventories 42. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं माइनस 630 420 2,10,000 माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नहीं आएगा ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 98,000. So this is cash generated from operations, and not only cash generated from operations but cash inflow from operating activities, because there is no tax. Cash inflow from operating activities. Leaving a line B, cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities. We just had plant. We just had plant. Purchase of plant and machinery 182 negative, sale of plant and machinery 56,000 positive, rent, interest, dividend we do not have any, so 56 minus 182 is negative 1,26,000. Outflow cash outflow from
investing activities, leaving a line. C, cash flow from financing activities, considering shares, debentures, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, मतलब हमने शेयर्स इशू किए 560, 630, 70,000 पॉजिटिव. That's it. No debentures, no interest, no dividend. This is the answer. 70. Cash inflow from financing activities. Now 70,000 minus 1,26,000 plus 70,000. So the answer is 14,000. A plus B plus C, net increase in cash and cash equivalents. 14,000 कैश इक्वलेंस इंक्रीज की है. ओपनिंग कैश है हमारे पास 84,000, मतलब 84 कैश था. सो 14 प्लस 84 इज 98, मतलब 14,000 आए, 84 थे, 98 होने चाहिए क्लोजिंग में. और अगर आप ध्यान देंगे तो ये है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंस, and the answer has been completed. Take your 2 minutes and wind it up the sum. 2 मिनट लीजिए और क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए. स्पीड अप बच्चा, छोटू सा क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन थ्योरी लिखवाना भी है आपको, एंड देन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Okay, moving on. Write down one question. Write down the question. What is the treatment of premium on redemption while preparing कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त प्रीमियम और रिडम्पशन की क्या ट्रीटमेंट रहेगी? सी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के रिडीम हो रहे हैं, हम 10% एक्स्ट्रा दे दें प्रीमियम और रिडम्पशन. जैसे कि डिबेंचर्स 10 लाख के रिडीम हो रहे हैं, हम उन्हें 12 लाख दे दें, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें, प्रीमियम और रिडम्पशन. उसको कैश फ्लो में कैसे ट्रीट करेंगे? अब ये एडजस्टमेंट में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी हो सकता है.
एडजस्टमेंट में है तो 2 ट्रीटमेंट्स, बैलेंस शीट में है तो 1 ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट में है तो 2 ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में है तो 1 ट्रीटमेंट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ when securities, preferentials or debentures are paid more than the book value, then it is considered as प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर सिक्योरिटीज की पेमेंट बुक वैल्यू से ज्यादा की जाए तो उसे कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कम वैल्यू नहीं होती, ज्यादा ही होती है या सेम होती है। 10 लाख के डिबेंचर्स को 10 लाख दिए, रिडम्पशन एट पार। 10 लाख के डिबेंचर्स को 12 लाख दिए, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 10 लाख के डिबेंचर्स को 8 लाख नहीं दिए जा सकते, दैट इज नॉट अलाउड। एंड इवन तो कोई फिर शेयर खरीदेगा ही क्यों उस कंपनी के, कि पता ही है 10 साल बाद कम पैसे वापस मिलने हैं। कूल। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? केस 1, इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इन एडजस्टमेंट, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्टमेंट में है तो पहला, इट विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम उसे राइट ऑफ कर चुके हैं, अमोर्टाइज कर चुके हैं, तभी वो बैलेंस शीट में नहीं है ना। अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में है, बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, क्योंकि उसे राइट ऑफ कर चुके हैं। दैट इज व्हाई इट इज अमोर्टाइजेशन, तभी वो बैलेंस शीट में नहीं है, इस साल राइट ऑफ कर चुके हैं। सेकेंड, it will be subtracted from financing activities, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। 10 लाख के डिबेंचर्स को 12 लाख दिए, तो 10 लाख के डिबेंचर्स माइनस 2 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन माइनस। दिस इज केस 1। मूविंग टू केस 2, हियर ध्यान दीजिए। केस 2, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बैलेंस शीट में हो, इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इन बैलेंस शीट, तो देखना पड़ेगा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कम होने का मतलब है वो राइट ऑफ हुआ है, अमोर्टाइजेशन, ये ट्रीटमेंट। कम हो रहा है तो ये, बढ़ रहा है तो ये, कम हो रहा है तो ये, बढ़ रहा है तो ये, एक इंपैक्ट। इफ इट इंक्रीजेस देन subtracted from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बढ़ रहे मतलब हमने राइट ऑफ नहीं किया, पैसे कम आए हैं हमारे पास। इफ इट डिक्रीजेस, और अगर कम हो रहा है तो एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कम होने का मतलब है हम उसे राइट ऑफ कर चुके हैं। पहले 10,000 फिर 8,000, 2,000 कम हो गया मतलब हमने राइट ऑफ किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, मतलब हमने उसे अमोर्टाइज किया है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के ये दो केसेस हैं कि वो एडजस्टमेंट में है या बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट में है तो 2 ट्रीटमेंट्स, बैलेंस शीट में है तो कोई एक ट्रीटमेंट। देखेंगे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नोट डाउन 1 मिनट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन व्हाइल मेकिंग CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1 मिनट।
Okay, let's moving to the last question. Question number 19. Following are the comparative balance sheets of Kumar Paints Limited for the years ended 31st March 17 and 18. Share capital, financing activities, reserves and surplus. नोट नंबर 1, 3 नोट्स में जर्नल रिजर्व है, एसपीआर है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंसिंग, ट्रेड पेएबल्स, ऑपरेटिंग, अदर करंट लाइबिलिटीज, ऑपरेटिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऑपरेटिंग, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इन्वेस्टिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग, inventories, trade receivables, other current assets, prepaid expenses, we have operating, cash and cash equivalents, none. Fixed assets में अगर आप ध्यान देंगे we have land, computer, machinery, और machinery दोनों गिवन है, at cost भी और net भी. आप देख सकते हैं less accumulated depreciation है, बट हम depreciation account बनाएंगे, provision for depreciation account बनाएंगे. Adjustment number 1, dividend paid, एप्रोप्रिएशन है, हमने डिविडेंड पे किया है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 20 वर सोल्ड फॉर 25, 20 की इन्वेस्टमेंट 25 में बेची, प्रॉफिट. मशीनरी कॉस्टिंग 9 ऑन विच 1000 डेप्रिसिएशन हैव बीन अक्यूमुलेटेड वाज सोल्ड फॉर 6000 इन द ईयर. मशीनरी अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ मशीनरी अकाउंट. Being asset, it has debit balance. At cost बनाएंगे, at WDV नहीं. मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 130. Machinery costing 9 on which 1000 depreciation is there. Cost is 9 एंड 1000 डेप्रिसिएशन जिस पे चार्ज की हुई है तो वो रहेगी 8. दिस इज कॉल्ड बीवी, बुक वैल्यू. हैज बीन सोल्ड फॉर 6, उसे हमने 6000 में बेचा. दैट मीन्स 2000 का हुआ लॉस. देन वी हैव कंप्यूटर अकाउंट. बनाने की जरूरत ही नहीं है, देख के पता लग रहा है कंप्यूटर बढ़ रहा है. कंप्यूटर बढ़ने का मतलब है कंप्यूटर खरीदा है. नो नीड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर. इंक्रीज इन कंप्यूटर मीन्स परचेज ऑफ कंप्यूटर रुपी 1 लाख. लैंड पहले 10 है फिर 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नीदर परचेज नॉर सेल. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ओके, मशीनरी की पहले पोस्टिंग करते थे. बाय कैश सेल 6000, बाय P&L लॉस 2000, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. कई बार क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होती, कितनी है, तो एक या तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आ जाएगा. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आता है? ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, मशीनरी. ये जो मशीनरी की अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस. आई नो ये बना नहीं है बट मैं स्टिल ये बना के एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. Buy balance brought down. How much is opening provision for depreciation? 15. To balance carry down. How much is closing? 25,500. सोचिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर गिवन होता. आई रिपीट, सोचिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर गिवन होता, वो इधर आ जाती बाय डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग फिगर आता टू मशीनरी. ये कौन सी डेप्रिसिएशन होती? जो एसेट हमने बेचा उस पे चार्ज हुई है और वो यहां पे ट्रांसफर हो जाती. गॉट इट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल.
सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 1000 जो कि इधर आएगी, और इधर आ जाएगी टू मशीनरी 1000. Balancing figure of this account is purchases. Balancing figure of this account is depreciation. To bank, purchases, balancing figure 39,000. You can write cash also. 50,000 से कम ही है. 1,39,000. और इसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर. This is 26,500 and this is 11,500. So basically this accumulated depreciation and this accumulated, this is same. चाहे इधर से इधर ट्रांसफर करो या इधर से इधर ट्रांसफर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए थर्ड एडजस्टमेंट तो हो गई. सेकेंड एडजस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मीन्स हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 50,000 50. बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्लोजिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 30. क्वेश्चन में बोला है 20,000 की चीज को 25,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ. टू प्रॉफिट ऑन सेल और टू P&L अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट. 20 की चीज को 25 में बेचा तो 5,000 का प्रॉफिट. बाय बैंक सेल 25,000. बैलेंसिंग फिगर दिस इज 55, दिस इज 55. सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट. अगर मैच नहीं करता तो इधर डाल देते परचेजेस और इधर सेल, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होती नहीं. आई नो सेल गिवन है, फिर एक और सेल डालनी पड़ती, मतलब बुक वैल्यू पे बेच देते उसको. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मैच करेगा या इधर आएगा परचेजेस. एडजस्टमेंट नंबर 1 डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल. शेयर्स को डिविडेंड दिया. हाउ मच इज शेयर कैपिटल ओपनिंग 2 लाख. 2 लाख पर 8% दिया. डिविडेंड पेड कौन से साल का चेक कर सकते हैं. ड्यूरिंग 17-18. इस साल पे किया, मतलब पिछले साल अनाउंस किया होगा ना, ओपनिंग पे होगा. 2 लाख का कितना परसेंट डिविडेंड पे किया हमने. 8%. 16,000. यही पेड है और यही मेड है, क्योंकि जब पे किया तो एंट्री होगी डिविडेंड टू बैंक और उसे P&L में ट्रांसफर किया होगा. स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिविडेंड. नाउ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर एप्रोप्रिएशंस. प्लीज चेक स्टेटमेंट ऑफ P&L. स्टेटमेंट ऑफ P&L से मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है 20,500 से 50,000. 20,500 से 50,000. 29,500. प्लस डिविडेंड मेड 16,000 प्लस टैक्स क्वेश्चन में नहीं है, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हाउ मच इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. पहले था 3,000, फिर है 2,000. 3,000 से 2,000, 1,000 कम हो रहा है, माइनस. तो बेसिकली ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व है. हमें लॉस हो रहा था, हमने जनरल रिजर्व से पैसे निकाले. पहले 3,000 थे जनरल रिजर्व में, फिर 2,000, इसका मतलब 1,000 जनरल रिजर्व से निकाला है. प्लस टैक्स वो तो नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन या बिफोर टैक्स. 29,500 प्लस 16,000 माइनस 1,000. जो इस क्वेश्चन में
Yeah, that's it. This is profit before tax. Question में tax के बारे में कुछ भी given नहीं है. Let's start with the question now. Cash flow statement. As per revised. लिखना नहीं होता, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको याद रहे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मेंशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट. पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की जगह ट्रांसफर फ्रॉम है क्योंकि जनरल रिजर्व कम हो रहा है. मैंने एसपीआर पे फोकस नहीं किया. एसपीआर पे फोकस नहीं किया क्योंकि एसपीआर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं आया है. और एसपीआर हमेशा बढ़ेगा, एसपीआर कम नहीं होगा क्योंकि कम हो रहा है तो वो हायर क्लासेस में समझाया जाता है क्या ट्रीटमेंट होती है, बाय बैक एक्सेट्रा. चलिए, ए कैश फ्लो फ्रॉम operating activities. Cash flow from operating activities. Profits before tax. How much is profit before tax? 44,500 plus non-cash and non-operating expenses. Depreciation on machinery 11,500 plus amortization of fixed intangible asset नहीं है, amortization of fictitious asset नहीं है, loss on sale of fixed asset 2,000, interest on debentures 40,000 का 10% 4,000 minus non-cash and non-operating incomes minus rent received, interest received, dividend received, nothing is there. Profit on sale of fixed asset, यहाँ पर है profit on sale of investments 5,000. Will get operating profit before working capital changes 44,500 plus 11,500 plus 2,000 plus 4,000 minus 5,000. 44,500 plus 11,500 plus 2,000 plus 4,000 minus 5,000 is 57,000. इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का स्टेटस डालेंगे. करंट एसेट्स में वी हैव इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 8,000. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं माइनस decrease in trade receivables 10. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नहीं आएगा. प्रीपेड एक्सपेंस सेम है, नहीं आएगा. मूविंग टू करंट लाइबिलिटीज. ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 7. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं प्लस increase in outstanding expenses 1,000. Provision for doubtful debts बढ़ रही है plus increase in provision for doubtful debts 1,000. This is cash generated from operations minus tax paid. We do not have any tax, do we? No, we don't. The balancing figure is not balance, the total is cash inflow from operating activities
57,000 minus 8,000 minus 10,000 plus 7,000 plus 2,000 is 48,000. So I am giving you 1 minute. ये सारा क्वेश्चन एक बार आप गो थ्रू कीजिए. Then we'll proceed to investing and financing activities. Giving you 1 to 1.5 minutes. Go through the question so that after that we can do investing and financing activities. So let's proceed with investing activities. B. Cash flow from investing activities. What do we have? We have tangible assets में machinery, purchase of machinery 39,000 negative, sale of machinery 6,000 positive. After machinery we have computer, purchase of computer 1 lakh positive. After computer we have land, neither purchase nor sale क्योंकि सेम अमाउंट है और एडजस्टमेंट भी नहीं है. देन वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कम हो रही हैं. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 20,000. रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. 1 lakh plus 6,000 minus 20,000 minus 39,000 is 47,000. Purchase of computer will be minus and sale of non-current investment will be plus. So the answer would be different. 26,000 minus 1,39,000 is 1,13,000. नेगेटिव. मशीनरी की परचेज 39 नेगेटिव, कंप्यूटर की परचेज 1 लाख नेगेटिव, मशीनरी की सेल 6,000 पॉजिटिव, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल 20,000 पॉजिटिव. सो 1,39,000 माइनस 26,000
113 नेगेटिव. कैश आउटफ्लो फ्रॉम investing activities. Now see, cash flow from financing activities. We'll just see the finances now. What do we have? Share capital बढ़ रहा है. Issue of shares 1 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है 5000 से, मतलब ये शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं. इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000. कम हो रहा होता तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बढ़ेगा तो यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. मतलब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं, लाख शेयर्स में 1,50,000 आए हैं. डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. कितने डिवेंचर्स रिडीम हुए? 5000 चले गए. अब इनकी कॉस्ट, शेयर्स को पे किया डिविडेंड, डिविडेंड पेड. हाउ मच इज डिविडेंड पेड? 16,000 माइनस डिबेंचर्स को पे किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड. डेट नहीं गिवन तो ओपनिंग पे होगा, विच इज 40,000, 10%, 4,000. सो द नेट आंसर इज 1 lakh plus 5,000 minus 5,000 minus 16,000 minus 4,000, 80,000. Positive. Cash inflow from investing activities. The sale of current investments is 25. You must have noticed that. The sale of current investment is 25, not 20. So it is 25 plus 6 minus 1,39,000. So this is 1,08,000. Net answer A plus B plus C 48,000 plus 80,000 minus 1,08,000 is 20,000. मीन्स हमारा कैश एंड कैश इक्वलेंस 20,000 इंक्रीज होना चाहिए. नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंस प्लस ओपनिंग cash and cash equivalents. The opening cash is 43. The net answer is 63, which is closing cash and cash equivalents. सब मैच कर गए, लास्ट में 63,000 ही आया है. प्लीज नोट डाउन द कंप्लीट कैश फ्लो, एक बार गो थ्रू कीजिए. देन आई विल गिव यू अ फुट नोट फॉर 1 minute. आपने साथ साथ नोट किया ही होगा, सो आई एम नॉट गिविंग यू 2 minutes, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 minute फॉर दैट. आपको ज्यादा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो. स्पीड अप, कंप्लीट इट. ओके, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ये चीजें गिवन हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे.
मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका कुछ नहीं करना, नोट भी देने की जरूरत नहीं है। बट आई डोंट नो वाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज वाई इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अगर इस क्वेश्चन में गिवन होता कि बैड डेट्स 5000 हुए, सैलरी 5000 पे की, इंश्योरेंस 5000 पे किया, हम कुछ भी ना करते, क्योंकि ये सब कुछ बिजनेस से ऑपरेट करता है और वो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होता है। जैसे कि परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच दी, ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश बैंक में जमा करवा दिया, ड्यूरिंग द ईयर कुछ बैड डेट्स हो गए, ड्यूरिंग द ईयर हमने सैलरी पे नहीं की या सैलरी पे कर दी इतनी। सो दीज आर द थिंग्स if given in adjustment has to be completely ignored, because these are supposed to be adjusted in direct method and not indirect while doing the operating activities. We are done with the chapter cash flow statement. Bye bye, take care, namaste.